Assalamu alaikum student, this is your teacher Abdul Dafe, and today the topic of discussion is basically we have covered IFRS 15. So now let's apply our knowledge to these questions. This is your illustration 1, okay, and it requires you to apply all 5 recognition criteria to this scenario. So recognition criteria IFRS 15 का हमने पढ़ा है, identify the contract, identify performance obligation, determine transaction price, allocate transaction price to performance obligation, and finally recognize revenue as or when it is earned. ठीक है, तो आपके पास on 1st December 20x1 W receive an order from a customer for a computer as well as 12 months of technical support. So receive an order और अगर उस पर work कर रहा है तो it means there is a contract. Okay. The performance obligation is sale of goods as well as sale of services. This is the performance obligation. We deliver computers and transfer its legal title to the customer on the same day. The customer paid upfront, the customer paid 420 on 1st December 2021. So this is the transaction price, third point. Okay. Now, fourth point is allocate the transaction price between the performance obligation, right? So this 300 is for sale of computer and this 120 is for sale of technical services, right? अब हमने देखा था to recognize revenue on goods, we have to look at the risk and reward, right? और services में stage of completion, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ओके, अब आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑन 1st December 20x और वे डिलीवर्ड द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट्स लीगल टाइटल. तो इसका मतलब ये है कि गुड्स 300 का रेवेन्यू सेल ऑफ कंप्यूटर पे हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लेना है. किस दिन? 1st December को. ओके, इफ आवर रिपोर्टिंग डेट इज 31st December. अच्छा, अब ये जो 120 है दिस इज फॉर 1 ईयर. ठीक है, इसका मतलब पर मंथ कितना होगा? हर महीने वो 10 का जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर आज 31st December है तो रेवेन्यू से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड रेवेन्यू कितना होगा? 10 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका होगा. क्यों? 120 जो है आपके पास डिवाइड बाय 12, इसका मतलब पर मंथ आप 10 रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो 31st December को वो सर्विसेज से रिलेटेड 10 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका होगा. ठीक है. Okay, this is the same illustration. Let's read it out. M company has a year end of 31st March 2026. On 1st January 2026, M company signed a contract with the customer to supply them with an asset on 31st March 2026. Okay, in return for a payment of 360 on 30th September 2026. Control of the asset passed on 31st March 2026. By 31st March 2026, as a result of changes in economic climate, M did not believe that it would be probably be paid the 360, and therefore the contract cannot be accounted for and no revenue should be recognized. रिलीज हो गया, सिंपल सी वो है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज illustration 3, agency sales. How should the agency sale will be treated in H statement of profit and loss? We know that agency में sales या principal agent relationship में for agent its agent commission revenue is only its commission, right? Rest of the amount is payable to प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल का क्या होगा? वो अमाउंट होगा जो कि उसने रिसीव किया, वो उसका रेवेन्यू होगा. ठीक है. सो एच कंपनी रेवेन्यू इंक्लूड्स 45,000 एंड फॉर गुड्स इट सोल्ड एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर ओफर. सो एच इज द एजेंट. तो इसने क्या करना है? सिर्फ कमीशन को अपने पास रिकॉर्ड करना है एज अ रेवेन्यू. ठीक है. ओके. H company earned a commission of 10% on these sales and remitted the difference of 40,500 included in cost of sales to O. अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या किया? इसने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड ही किया है. कितना? इसने का नेट इफेक्ट में रिकॉर्ड कर देता हूँ. ठीक है. इसको क्या चाहिए था? इसको चाहिए था कि अपने पास रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करता? सिर्फ 4500 से, राइट? कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए था? 10% ना.
हाँ, तो रेवेन्यू इसका होना चाहिए था 4500। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 45,000 और उसमें से सीजीएस लेस कर दी 40,500 की, तो बना कितना, नेट ग्रॉस प्रॉफिट बना के 4500 शो कर रहा है। दिस इज नॉट द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, बैलेंस वो हो रहा है 4500 ही आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एक्सेसिव 40,500 उसने रिकॉर्ड किया इसको रिवर्स करना है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पास क्या होगा, इसने सिर्फ 4500 रिकॉर्ड करना है, ये अपना 4500 प्रॉफिट शो कर रहा है, ये जस्ट इसको चाहिए कि आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे इसका रेवेन्यू, वो जो अमाउंट इसने एक्सेस रिकॉर्ड किया 40,500 से, और कॉस्ट ऑफ सेल तो इसकी है नहीं, इसने तो कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्लूड की हुई है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सीजीएस को 40,500 से। बस हमने ये काम कर, ठीक है, तो इसका रेवेन्यू कितना रह जाएगा, पीछे रिमेनिंग 4500 ही रह जाएगा। ठीक है, ये काम करना है हमने। तो दिस विल बी, दिस इज द एडजस्टिंग एंट्री जो कि हमने अभी परफॉर्म की है। क्लियर हो गया, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल कंसिडरेशन। ओके, फाइनेंसिंग, लेट्स सी व्हाट इज फाइनेंसिंग, नॉर्म्स ऑन फाइनेंसिंग। Explain how this transaction should be accounted for in the financial statement of K for the year ended 30th September 2023 and 20x4. Okay. K company enters into a contract with the customer to supply furniture on 30th September 20x3. Control of the furniture transferred to the customer on that date. The price stated in the contract is 750,000 and is due to be for payment on 30th September 20x5. 2 साल बाद पे हो रही है, इसका मतलब टाइम वैल्यू मनी आ रहा है ना इसमें। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल टू दिस पर्टिकुलर इज 7%। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सेल शीट पे करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20x4 और 20x3 दोनों की ट्रीटमेंट बतानी है। तो लेट्स सी ऑन एक्सेल, दोनों की अलग डिस्काउंट करेंगे ना, एक ही को डिस्काउंट करेंगे, उसको हम देख लेंगे सेपरेटली। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आपका ईयर एंड है 30th सितंबर। ठीक है, तो हमने उसी की दिन देखना है कि 30th सितंबर को क्या रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, सो 30th सितंबर को ट्रांजैक्शन हुई है, पेमेंट प्रॉमिस हुई है 30th सितंबर 2025 पे, तो 2 इयर्स का गैप आ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस 750 को डिस्काउंट करेंगे यूजिंग 7% इंटरेस्ट रेट। तो हम इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास होगी 750,000 इंटू 1.07 रेज टू पावर -2, तो 6,55,079 ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपने डेबिट बुक कर दिया इससे रिसीवेबल्स, डेबिट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट रेवेन्यू ऑन 30th September 20x3 655,079 एंड 655,079। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके पास रिसीवेबल्स आ रहे होंगे 655,079 और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा 655,079। ठीक है, राइट। अब हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर में क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हमारे पास देखना है, पहले तो हम ये भी डिसाइड करें कि यार ये वन ऑफ सिचुएशन है या हर एक को लॉन्ग टर्म क्रेडिट कस्टमर कर देता। नहीं, वो कह रहा है enters into a contract with customer to supply furniture, control of the furniture transfer to the customer. अच्छा, दिस इज वन टाइम प्रैक्टिस, ये नॉर्मली नहीं है, तो हम इसके इंटरेस्ट को इंटरेस्ट इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर, पहले साल क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ है तो इस साल कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आपने इसका 10% इंटरेस्ट ले लेना है, इसका आपने 7% इंटरेस्ट लेना है, सॉरी। तो 7% इंटरेस्ट कितना होगा, 45,856। इस इंटरेस्ट की क्या एंट्री हुई होगी, डेबिट इंटरेस्ट, सॉरी डेबिट रिसीवल, क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम। तो आप देखें रिसीवल की अमाउंट में यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ऑल दो दिस इज रिक्वायर्ड, लेकिन हम 20x5 को भी देख लेते हैं। तो 20x5 पे उसने इस वैल्यू का 7% ले रहे हैं, तो आप देखें 3 साल बाद ये 750 पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is consideration payable to customer. Okay,
Golden Gate enters into a contract with a major chain of retail stores. The customer commits to buy at least 20 million of products over the next 12 months. ठीक है. The terms of the contract require Golden Gate company to make a payment of 5 million to compensate the customer for changes that it will need to make to its retail store to accommodate the product. Okay, so Golden Gate is your seller, Golden Gate, और जो रिटेल मार्केट थी आपके पास, मार्केट स्टोर किधर है, स्टोर जो है आपके पास, दिस इज योर बायर. कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है 20 मिलियन का. अच्छा, गोल्डन गेट बेसिकली 1 मिलियन भी पे कर रहा है इसे. अब इस 1 मिलियन को हमने क्या ट्रीट करना है, क्या इस 1 मिलियन के बदले में उसने कोई चीज परचेज की? नहीं. बेसिकली ये 1 मिलियन पे कर रहा है और इस 1 मिलियन को पे करने से उसको कोई फायदा भी नहीं है ना. ठीक है, ये सिर्फ 1 मिलियन इसलिए पे कर रहा है ताकि वो उसकी स्पेस को इस काबिल बना सके ताकि ये जो 20 मिलियन का ऑर्डर उसको सेल कर रहा है तो स्टोर एकोमोडेट कर सके. तो ये बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू की तरह से डील करेंगे कि दिस इज कॉस्ट टू सेल. ठीक है, ये 1 मिलियन उसने पे की है ताकि वो 20 मिलियन को सिक्योर कर सके. ठीक है, तो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बेसिस पे हमने इसको रिकॉर्ड करना है. ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि यार एक और भी चीज. बाय 31 दिसंबर गोल्डन गेट कंपनी हैज ट्रांसफर द प्रोडक्ट विद अ सेल वैल्यू ऑफ 4 मिलियन. ठीक है, चलें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस 1 मिलियन हैज बीन पेड. ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज डेबिट एडवांस क्रेडिट कैश 1 मिलियन. राइट, ये 1 मिलियन मैचिंग कॉन्सेप्ट के अप्लाई करते हुए हमने एज अ कॉस्ट टू सेल लेस करते रहना है. बाय द ईयर एंड हमने टोटल उनको 12 महीनों में 20 मिलियन सेल करना था. अभी ईयर एंड तक हम कितना उनको ट्रांसफर कर चुके हैं, 4 मिलियन. अच्छा, 4 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कितना परसेंट होता है, 4 डिवाइड बाय 20, तो इससे कितना परसेंट होता है, 20%. हाँ, 20%, 20%. तो उसने जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया होगा, रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हुआ होगा 4 मिलियन हुआ होगा. राइट, ठीक है, 4 मिलियन. ये जो कॉस्ट टू सेल पे की है ये रिलेटेड टू कस्टमर है. तो अगर टोटल रेवेन्यू का 20% वो रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर रहा है तो ये जो कॉस्ट टू सेल है इसका भी 20% उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होना चाहिए. तो इसका 20% क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसको एडवांस को और डेबिट कर देंगे हम अपने रेवेन्यू को. तो 1 मिलियन का 20% क्या होता, 0.2. तो ये रेवेन्यू उसने क्या किया होगा, रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, इसका आसान तरीका भी ये कि हमारे पास देखा जाए 20 में से रियलाइज कितना हो रहा है, 19. तो बेसिकली ये कितना बनता है, ये बनता है 95%. ऐसा ही. तो हम इस 4 का डायरेक्ट 95% ले लें, 4 इंटू 95%, वो भी यही आएगा 3.8. तो आइदर वे आप यूं भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इस 1 मिलियन के अगेंस्ट हमने कुछ परचेजेस नहीं की तो हम इसको डेबिट परचेजेस या उस तरीके से नहीं. दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल जो कि हमें इनकर किए जस्ट टू सिक्योर दैट फेयर वैल्यू ऑफ 20 मिलियन. हाँ, 19 के बेसिस पे आप उसको करते हैं, लेकिन आप फौरन नहीं करेंगे ना मैचिंग कॉन्सेप्ट, इट इज एडवांस. ये विद टाइम जो है कॉस्ट ऑफ सेल पड़ रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. The payment made to customer is not exchange for distinct good or service. Therefore, 1 million paid to customer is reduction in the transaction price. The total transaction price is reduced by 1 million, 5%. So therefore, the Golden Gate reduces the transaction for each by 5%. So 4 million का 95% उसने ले लिया, that will be recorded as a revenue. Next, आपके पास है test your understanding 2. How should the transaction price be allocated between the machine and technical support? ओके, सेपरेट और लिंकेजेस. ठीक है, सेपरेट और लिंकेजेस में क्या था, बेहतर ये सेपरेट करें, नहीं कर सके तो आप उसको एज अ सिंगल डील ले लें. ठीक है, सो एस कंपनी सेल्स द मशीन एंड 1 year फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 50,000. तो कॉन्ट्रैक्ट था, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहा 2, मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट, और ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है 50. अब हमने एलोकेट करना. ठीक है, इट यूजली सेल्स द मशीन फॉर 60,000 बट डज नॉट सेल द टेक्निकल सपोर्ट. ठीक है,
Other support services offered by S attracts a markup of 50%. It is expected that technical support will cost as 10,000. Okay. अब अगर देखा जाए नॉर्मली वो सिर्फ मशीन सेल करता था 60,000 पे, ठीक है, और टेक्निकल सपोर्ट वैसे नॉर्मली सेल नहीं करता, ठीक है, लेकिन अब वो क्योंकि सेल कर रहा है और नॉर्मल वे में वो अपना प्रॉफिट कैसे डिटरमिन करता है, 50% मार्कअप, मार्कअप कॉस्ट होता है, स्मार्ट सेल पे होता है, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे होता है ना, तो दिस इज योर कॉस्ट। अगर उसको टेक्निकल सर्विसेज सप्लाई करने की कॉस्ट 10,000 पड़ रही है तो उस पर उसने 50% अपना प्रॉफिट रखा है, तो टेक्निकल सपोर्ट वो कितने का सेल करेगा, 15,000 का। इसका मतलब ये डील होनी चाहिए थी कितने की, 75,000, बट इंस्टेड ये डील कितने की हुई है, 50,000। तो ये जो 25,000 का डिस्काउंट है वो अब हमने देखना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं डिस्काउंट बनता कितना है। 25,000 का डिस्काउंट है, टोटल प्राइस कितनी थी 75,000, तो ये कितना डिस्काउंट बनता, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट 33.33% ये बनता है। अच्छा, ये मैं डिस्काउंट अब दूं तो किसको दूं, सिर्फ मशीन को दूं या सर्विसेज को दूं, कुछ मेंशन है इधर। अगर उसने बताया होता मशीन को तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 60,000 में से 25 लेस कर देते, टेक्निकल सपोर्ट को बताया होता तो उसमें से लेस कर देते। इसका मतलब ये पूरी डील पे है, तो इसका मतलब हमने ये डिस्काउंट दोनों पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं 33% डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं अर्न कितना कर रहा हूं, मैं बेसिकली अर्न कर रहा हूं 66.67%, राइट, ये मैं उसको अर्न कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस कर लेते हैं, रिकॉग्निशन बाद में। अभी हम फोर्थ पॉइंट पे, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो इस 50 को हमने एलोकेट करना है, ठीक है। तो 60,000 का आप मुझे बताएं 66.67% कितना बनता है, 60,000 का गुड्स की सेल प्राइस कितनी होगी, पहले मैं ये कर रहा हूँ। 60,000 नॉर्मल प्राइस थी जिसपे मैं उसको 33% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं उनसे कितना ले रहा हूँ, 40,000 बेसिकली 40,000 ही हुआ, ऐसा ही है। और अगर मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ तो सर्विसेज पे टोटल सर्विसेज कितने की होती है, 15,000 की, मैं उसको 66.67 पर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 10,000 ले रहा हूँ, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50,000 हो गया। सो दिस इज योर 5.4 एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, राइट। अब 0.5 क्या था, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज और व्हेन इट इज अर्न, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में क्या करते हैं, जिस वक्त सेल हुआ, तो इसका मतलब वो किस वक्त सेल हुआ, जिस वक्त सेल हुआ होगा उसको फौरन रिकॉग्नाइज कर देंगे। और ये जो 10,000 है ये हम टेक्निकल सपोर्ट कितने अर्से के लिए दे रहे हैं, 1 ईयर, तो इसको 1 साल पे वो करेंगे, पर मंथ का निकाल लेंगे, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, डेट्स नहीं मेंशन हुई, वरना मैं उसको कर भी देता। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, how should these cars be treated in the financial statement of Dusty for the year ended 31st December 2023, ठीक है। So we have to check the substance of transaction, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, किसके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है, ठीक है, और किसके पास सेल्स रिकॉर्ड होती है। ओके, on 1st January 2023 Ford Motor company, car manufacturer, entered into an agreement to provide Dusty, a car retailer, with cars for resale। तो अभी तो लग रहा है कि दिस इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जिसकी बेसिस पे रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रिंसिपल के पास होता है। Okay, the terms of agreement were as follows: Dusty pays the cost of insuring and maintaining the car, ठीक है। तो अगर डस्टी पे कर रहा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड मेंटेनिंग, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है,
डस्टी के पास। ओके, डस्टी कैन डिस्प्ले द कार इन इट्स शोरूम एंड यूज देम एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। ठीक है, इधर भी वो यूजेज, उससे बेनिफिट कौन ले रहा है? फ्यूचर बेनिफिट। ओके, सो इट इज डस्टी। When a car is sold to a customer, Dusty pays Ford Motor the factory price prevailing at the time of car was originally delivered. ठीक है, अब भी रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बेयर कर रहा है? डस्टी। देखिए, डस्टी ने फ्रॉड मोटर से कार ली थी क्रेडिट पे, ठीक है, और जिस दिन क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन ली, फॉर एग्जांपल मैंने कार ली जिस वक्त, वो थी 20 लाख की। अब जब वो गाड़ी बिकेगी तो मैंने फ्रॉड मोटर को कितना पे करना है? 20 लाख। अब मैं गाड़ी 22 लाख में बेचूं, 18 लाख में बेचूं, मैंने 20 लाख पे करना है। तो यहाँ पे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बेयर कर रहा है? डस्टी। तो अभी तक तो लग रहा है कि ये डस्टी की इन्वेंट्री है, ठीक है। All cars remaining unsold 90 days after the original delivery must be purchased by Dusty at the factory price prevailing at the time of delivery. जो अनसोल्ड कार होगी 90 डेज में, वो किसने परचेज करनी है? डस्टी ने। तो अगेन रिस्क एंड रिवॉर्ड डस्टी। ठीक है, 90 डेज तक रिटर्न टाइम है, देख लेते हैं। फ्रॉड मोटर कैन require Dusty to return the cars at any time within 90 period. In practice, this has never happened. अब यहाँ पे देखें, अगर 90 डेज से पहले कोई 90 डेज तक सेल नहीं हो रही, आप 90 डे 89 डे पे आप रिटर्न कर दें फ्रॉड मोटर को, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बेयर कर रहा है? यहाँ पे फ्रॉड मोटर बेयर कर रही है, ठीक है। अब ये ऑप्शन है, लेकिन आपको याद है प्रोबेबिलिटी हमने कहा था, ये ऑप्शन है कि वो 90 डेज से पहले कभी भी रिटर्न कर सकता है। 90 डेज बाद तो उसने परचेज करनी है, 90 डेज से पहले रिटर्न कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन कभी उसने एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की बेस पे ऐसा हुआ नहीं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी जस्ट ही कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन उसने अवेल ही नहीं किया। Okay, next point is Dusty can return unsold product, unsold car to Ford Motor at any time during the 90 days period without penalty. In practice, this has never. ये वही point है, ठीक है। At 31st December, तो इससे इस point को देख के भी कर लग रहा है कि risk and reward जो है ना, Dusty ही bear कर रहा है। हाँ, उसी को किया। At 31st December, the agreement is still in force and Dusty holds several cars which were delivered less than 90 days. तो अगर उसने आज तक कभी रिटर्न नहीं की तो भी करेगा? चांसेस तो नहीं है प्रोबेबिलिटी की बेस पे, पास्ट प्रैक्टिसेस या पास्ट एक्सपीरियंस से तो हमने यही देखा है। तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटिंग टू कार्स कौन बेयर कर रहा है? डस्टी। तो इसका मतलब डस्टी के पास उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए और फ्रॉड मोटर को क्या कर देना चाहिए? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sale and repurchase. Let's see whether it's a sale or not, it's just a loan agreement. अब देखते हैं हम किस तरीके से हो सकता है, डिफरेंट चीजें, ये अभी हमने वैसे उसको नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। गिवन रीजन शो हाउ ए should record the above transaction during the year ended 31st December 20x1. Okay. A sells its maturing inventory with a cost of 1 million to Alba. Okay. A bank. So this is a bank. This is a seller. Okay. For its fair value of 1.5 million. ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ आ रही है, कॉस्ट उसकी थी 1 मिलियन और आपने उसको सेल किया है 1.5 मिलियन, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट अर्न किया 0.5 का, ठीक है। अब देखते हैं, और 1.5 मिलियन इज इट्स फेयर वैल्यू। On 1st January 20x1, this happens, this transaction happens. A has the option to repurchase the inventory on 31st December 20x8. Okay. ट्रांजेक्शन हुई कब थी? 1st January 20x1 पे, और A जो सेलर है, he has the purchase option कि वो 31st December 20x8 को 8 साल बाद परचेज कर सकता है उसी इन्वेंट्री को for 2.2 मिलियन। मतलब ये मैंने आपको बेची, हाँ, तो मैं आपसे वापस भी
परचेज करता हूँ 2008 में आप परचेज, और वो भी डिसाइड है कि मैं आपसे रीपरचेज कितने पे करूंगा। जो चीज मैंने आज को आपको बेची है 1.5 मिलियन पे, मैं 8 साल बाद आपसे रीपरचेज कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। और कितने पे करूंगा? 2.2 पे। अब ये डिसाइड करना है कि ये ऑप्शन मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि नहीं करता, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन है ना, कंपल्सरी तो लाइबिलिटी तो नहीं है ऑब्लिगेशन की मैंने परचेज करना ही है, दिस इज एन ऑप्शन। A will continue to hold the inventory when it's within its warehouse as normal throughout the period। अच्छा, एक बात ये कि मैंने आपको सेल की है, लेकिन कस्टडी ऑफ द इन्वेंट्री मेरे पास ही है, और 8 साल बाद मैं आपसे परचेज कर सकता हूँ और वो मेरे पास ही है फुल टाइम, मैं ही उसे बेनिफिट भी ले रहा हूँ, ठीक है। सो एंड सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, और मेंटेनेंस और रिस्क एंड रिवॉर्ड भी कौन बेयर कर रहा हूँ? मैं ही बेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख के तो लगता है मैंने सेल नहीं किया आपसे, ठीक है। अब आगे देखें, एट 31 दिसंबर 20x8 द इन्वेंट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 4 मिलियन। मैं आपसे इस दिन रिटर्न लूंगा ना, कितने पे लूंगा? 2.2 मिलियन, और उस दिन उस इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? 4 मिलियन। तो मुझे बताएं, इस इंक्रीज फेयर वैल्यू का बेनिफिट किसको है? मुझे, आपको है? रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मेरे पास है, और मुझे बताएं, मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं परचेज कर सकता हूं, क्या मैं करूंगा? करना चाहिए ना यार, मुझे एक चीज जो 4 मिलियन की 2.2 में मिल जाएगी, मैं आपसे रीपरचेज करके मार्केट में 4 मिलियन की क्यों ना बेच दूं? तो बेसिकली ये सेल नहीं था, ये लोन एग्रीमेंट था, जिसमें मैंने आपसे इन्वेंट्री क्या की है? मॉर्गेज रखी है, यूज मैं ही कर रहा हूँ। दिस इज इन्वेंट्री पे कोई फिक्स चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, मैं इसको सेल की तरह बुक नहीं करूंगा, मैं करूंगा डेबिट कैश 1.5 मिलियन, क्रेडिट लोन 1.5 मिलियन, और ये जो डिफरेंस है 1.5 मिलियन और 2.2 का, इसको मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा, स्प्रेड आउट कर लूंगा, ठीक है, किसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू बनूं करके, वो उस तरीके से डील होगा, ठीक है। तो आप देखें, जब मेरे पास ऑप्शन होता है तो वी हैव टू सी वेदर ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। अब मेरे लिए एक्सरसाइजेबल है ना, एक चीज जो 4 मिलियन की है, मुझे उस ऑप्शन की वजह से 2.2 मिलियन है, तो मैं प्रोबेबल है ना कि मैं वो ऑप्शन अवेल करूंगा। तो इसका मतलब कि इन्वेंट्री, आप, ऑप्शन है मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट में था ना, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रीपरचेज कर सकते। अब मैं नहीं करता तो फिर अब वो हो सकता था, लेकिन ये इतना फेवरेबल ऑप्शन है, मैंने करना तो है एक्सरसाइज। तो इसका मतलब यही है कि दिस इज नॉट द सेल, ये लोन था, और इस पे क्या हो रहा था? इंटरेस्ट हो रहा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3, जोहान, explain the financial reporting treatment for the issues of for the year ended 31st March 2027। ओके, हमारे पास ईयर एंड 31st March 2027, और इस पे देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2026, बिल्कुल एक साल पहले, ठीक है, जे सोल्ड इट्स फैक्ट्री टू सी, ठीक है, अ फाइनेंस कंपनी फॉर 8 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जे जो है सेलर है और सी जो है बायर है, ठीक है। J continued to use the factory and was responsible for the insurance and maintenance. So who is basically bearing the risk and reward? J। अब हम देखते हैं ना कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज होता है कि नहीं होता, फेवरेबल है तो करेगा, नहीं तो, ठीक है। J has the right to repurchase the factory for 9,80,000, okay, on 1 April 20x9, यानी 3 साल बाद, okay, representing 7% growth in value each year. At 1 April 2026, the factory had a fair value of 1.5 million. अभी तो 3 साल बाद हम कह रहे हैं उसको 980 का परचेज करेंगे, अभी एक साल बाद ही उसकी 1.5 मिलियन वैल्यू हो गई है। तो 3 साल बाद कितनी होगी? हो सकता है 2 मिलियन से ऊपर चली जाए, ठीक है। विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 6 मिलियन, द फेयर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अप्रैल, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है परचेज करने के एसेट के, हम उसको 9,80,000 में खरीद सकते हैं, कब? अप्रैल 2009 में, बिल्कुल। और अभी इस साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी है? 15 लाख है,
तो मुझे बताएं, एक चीज जो 15 लाख के 9 लाख पे मिल रही हो, अच्छी नहीं होगी? तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा ना। तो अगेन दिस इज नॉट द सेल, ये क्या था? लोन एग्रीमेंट। मैंने लोन लिया है एज अ मॉर्गेज, ये मैंने उसको जो है चार्ज एज अ फिक्स चार्ज रिकॉर्ड किया। मैं उसको यूज भी कर रहा हूँ, उससे जो इंक्रीज प्राइस में बेनिफिट भी होगा वो भी मैं ही लूंगा। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ऑन 31st March 27 जे सेल्स एन ओवन प्लस स्पेयर पार्ट्स टू मार्को फॉर 2,20,000. The price was split between 2 lakh for the oven and 20,000 for the spare parts. ठीक है, तो these are goods, दोनों स्पेयर पार्ट्स और ओवन। ठीक है, J delivered the machine on 31st March 2087 but was asked to hold the spare part. अब ये तो आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो इससे रिस्क एंड रिवॉर्ड किससे होंगे? मार्को पे। तो रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए जे को। But was asked to hold the spare part by Marco because Marco's factory was very close to J. J expect to hold the spare part for 2 to 4 years. This is basically uh, delaying in the delivery because on the request of buyer. जे तो अभी वो कर सकता है, वो कह रहा है अपने पास रखें, तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड। बिल एंड होल्ड अभी हमने पढ़ा था ना, बिल एंड होल्ड। The parts are kept separately in warehouse, cannot be used by or sold by J, and are ready for immediate delivery. ये तो आज बोले आप आपको सेल कर दें। J agreed that to the transaction and decided to hold that holding cost would be insignificant. तो इसका मतलब उसको टोटल 2,20,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं और बदले में तो फीस भी चार्ज करनी चाहिए। मैंने जो है आपका होल्डिंग कॉस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये भी यूज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये भी हमने थोड़ा सा देखा भी था। ठीक है, ओके। So this is illustration 7, contract profit. So this is your first requirement. What amount of revenue and cost profit should be recognized in the statement of profit and loss? ठीक है, तो पहले हमने पार्ट ए करना है, उसी पे फोकस करते हैं। The contract price and cost to date is given to you. ठीक है, estimated cost to complete is also there, is estimated stage of completion is also there, right? What was the criteria? प्रॉफिट मेकिंग में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट, कॉस्ट टू डेट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये प्रॉफिट मेकिंग था, तो इसी की बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली चीज होती है डिटरमिन द आउटकम। ठीक है, वो वैसे तो कह रहा है प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट है, तो लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज, दिस इज वर्किंग नंबर 1, 800, कॉस्ट टू डेट 320, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 280. So this will give you a profit of 200. So this is a profit making contract. ठीक है, next step is stage of completion which is given to you 60%. Working number 3 is SOPL, right? So SOPL में हमने क्या करना है? Revenue according to stage of completion. So 800 का 60% क्या होता है? 480, right? और कॉस्ट आपके पास क्या होगी? कॉस्ट टू डेट 320, तो आपके पास प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड हो रहा? 120 का। डन, कितने हैं? 160, सॉरी 160 का आपके पास प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा पार्ट बी में क्या होगा? टेक द सेम कॉन्ट्रैक्ट बट नाउ अज्यूम दैट बिजनेस इज नॉट एबल टू रिलायबली एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो इट इज बिलीव दैट ऑल कॉस्ट इनकर्ड विल बी रिकवरेबल। अब अगर आपके पास ये सिचुएशन हो, ठीक है, तो आपने क्या लेना है? कॉस्ट टू डेट और बैलेंस सेम फिगर। तो कॉस्ट टू डेट आपके पास कितनी है क्वेश्चन में? तो फॉर पार्ट बी रेवेन्यू वुड बी, कॉस्ट टू डेट इज 320, और यहाँ पे हमने ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो ये हमारे पास रेवेन्यू कितना आएगा? एग्जैक्टली, सो दिस इज योर। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आपके पास पूरी वो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया। वर्किंग नंबर 1 डिटरमिन द प्रॉफिट, ये मैंने आपको बताया था। वर्किंग नंबर 2 डिटरमिन द प्रोग्रेस इन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वर्किंग नंबर 3 एंड फोर्थ इज अमाउंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अमाउंट इनवॉइस, एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, ओके। How should this transaction be accounted for in the year ended 31st December 20x1? So this is your requirement. Okay. So on 1st January 20x1, uh, Baker Company entered into a contract with a customer to construct a specialized building for consideration of 2 million plus a bonus. Okay. Bonus is 4 million. So here it is variable consideration, right? If the building is completed within 18 months, तो अब हम या तो 2 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे या 2.5, वेरिएबल कंसिडरेशन यहाँ पे आ रही है। Estimated cost to construct the building were 1.5 million. If the contract is terminated by the customer, Baker can demand payment for the cost incurred to date plus a markup of 30% on 1st January 20x1. As a result of factors outside the control, Baker was not sure whether the bonus would be achieved or not. ठीक है, so he is not sure about this, तो हमने इसको कंसिडर ही नहीं करना। ठीक, हाँ, हमने 2 मिलियन को करना है। At 31st December, Baker had incurred cost of 1 million. They are still unsure as to whether the bonus would be met. Baker measure progress toward completion on cost incurred. तो यहाँ पे आपके पास input method पे जा रहा है वो, और फिर आपके पास है at 31st December 20x1, Baker had received 1 million from the customer, right? तो सबसे पहले determine the outcome, right? और यहाँ पे आपके पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन ओवर द टाइम, इसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। सो सबसे स्टेप नंबर 1 इज डिटरमिन द आउटकम। ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज determine the outcome. So let's see whether it's a profit making or loss making. Okay, so determine the outcome is step number 1. So we have a contract price, और वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपके पास 2 मिलियन। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें बोनस का कुछ श्योर नहीं है, तो इसलिए हम उसको 2 मिलियन ही देंगे। So 2 million is the contract price. Contract cost is 1.5 million. So this is your contract cost. Okay, let me. Okay, this is your contract cost, 1.5 million, right? So this is your profit making contract, right? तो आपको प्रॉफिट आ रहा है अपना 0.5 का, ये तो हमें कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थिंग इज स्टेप 2 इज स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ओके, स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो कहा था कि डिटरमिन करने के लिए उन्होंने कहा था दे आर यूजिंग Baker had incurred costs of 1 million. They were still unsure as to whether the bonus target would be met. Baker makes measure progress toward completion based on cost incurred. So input method है. So stage of completion would be divided by cost incurred divided by total cost. ठीक है, तो ये आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये आपके पास आता कितना है, ये आपके पास आ जाता है 67%। तो ये आपके पास हो रहा है 67%। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने स्टेप नंबर 3 होगा जो आपके पास है स्टेप 3। ये बेसिकली 67% नहीं है, ये आपके पास है 66.67%। ठीक है, स्टेप 3 आपके पास एसओपीएल में क्या रिकॉर्ड करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी थी,
ये हमारे पास होगा 2 मिलियन इंटू 66.67%, राइट, ये होगा। तो हमारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, 2 इंटू 0.6667, ये आपके पास आ रहा है रेवेन्यू 1.33, ओके। और कॉस्ट क्या होगी, cost will be cost to according to stage of completion or cost to date, which is 1 million, okay। तो आपके पास रेवेन्यू आ रहा होगा 0.33, okay, this is the revenue। Step 4 is statement of financial position, उसमें आपने क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो statement of financial position में there is a formula to recognize contract asset or liability। Formula is revenue recognized minus less प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग और अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, एक ही बात है, प्रोग्रेस बिलिंग, ठीक है, बिल्कुल जी। तो रेवेन्यू हमने कितना रिकॉग्नाइज किया, 1.33, और प्रोग्रेस बिलिंग कितनी हुई है, हमने बिल किया था और उसने 1 मिलियन रिसीव कर चुका है, तो दिस इज योर प्रोग्रेस बिलिंग। तो आपके पास जो एसेट आ रहा होगा दैट इज 0.33, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, और ये आपके पास एसेट्स में शो हो रहा होगा, ओके। दिस इज हाउ इट्स डन, क्लियर। Next question is test to understanding 5 on let me check. How should this transaction be accounted for in the year ended 31st December 20x1? This is your year end. On 1st January 20x1, Castle entered into a contract with the customer to construct a specialized building for consideration of 10 million. Castle is not able to use the building themselves at any point during the construction. At 31st December 20x1, Castle had incurred cost of 6 million. Costs to complete are estimated at 6 million. Castle measured progress toward completion based on costs incurred. At 31st December, Castle has received 3 million from the customer. सेम सिचुएशन है, ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। Okay. Then we have test understanding 6. How should the transaction be accounted for in the year ended 31st December 20x1? Contract price is 100 million. Incurred cost to date is 24 million. Cost to complete is 20 million. Okay. Amir purchase a plant used in construction. This must be also included the part of depreciation of plant is allocated to straight line method. Amir measure progress from contract to output method. Okay. Based on the work value certified. So work certified is 45 million. So cost incurred, cost to complete है 24 मिलियन इनकर हो चुके हैं और फर्दर 20 मिलियन लगेंगे जो हो गया, तो सो दैट इज कॉस्ट टू कंप्लीट। वर्क सर्टिफाइड इज 45%, सो बेसिकली आपका 45% आपके पास वो होगा, और द कस्टमर पेड अप फ्रंट ऑफ 11 मिलियन, सेम सिचुएशन है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है वो आपने कॉस्ट में लेनी है इसको। देन हार्ड फ्लोड, ये तो छोटे से क्वेश्चन है, कॉस्ट टू कंप्लीट भी गिवन है, वर्क प्रोग्रेस भी पेमेंट गिवन है, सेम है, उसी फॉर्मेट में आपने करना, स्टेप फॉलो करने, सिंगल लाइन है। ये दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दिस इज टोटल कॉस्ट, सो ये भी प्रॉफिट मेकिंग है, ये भी मेरा ख्याल है प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। और ये आपका ये इसका आउटकम डिटरमिन नहीं हो रहा क्योंकि वर्क सर्टिफाइड और प्रोग्रेस पेमेंट का कुछ पता नहीं, ठीक है, अलग अलग ही करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी, ठीक है।
ओके, ये है आपके पास टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 8। इसमें आपके पास थोड़ी सी डिटेल वर्किंग है तो हम इसको कर लेते हैं। एंड अगेन 2 years ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, सो इस पे हम इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। Prepare the extract from the financial statement of Maryview reflecting the impact of the contract with Better Homes for 31st March 20x1 and 31st March 20x2. So Maryview specializes in long-term contract. In each contract, Maryview is entitled to receive payments reflecting the progress of the work. So revenue should be recognized over time. Okay. One of its contract with Better Homes is to build complex luxury flat. The price for the contract is 40 million and its scheduled date of completion is 31st December 20x2. Okay. Details of the contract at 31st March 20x1. This is your A rent, ठीक है. This is the contract completion date. A rent की basis पे हमने करना है, ठीक है. So commencement date 1st July 20x. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपके पास जिसमें इट इंक्लूड आर्किटेक्ट फीस, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड अपोर्शन ऑन 40% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्लीट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 14,800. ओके, सबसे पहले वी हैव टू डिटरमिन कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है, ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3.6 million on 1st July 20x1, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था. At the end of the contract, it is expected to be transferred to a different at contract at a value of 600. इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मशीनरी कितनी यूज हुई होगी? 3 million की. 6 लाख दूसरे प्रोजेक्ट पे होगी, तो जो 3 million हमने इस प्रोजेक्ट पे यूज किया, हमने उसी को इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में लेके जाना है. Depreciation is to be based on time apportioned. Better Homes made a progress payment of 12 lakh as 12 like 12.8 lakh. Okay, sorry, 12.8 million and not lakh. 12.8 million to Maryview on 31st March 20x1. So ये फर्स्ट ईयर के एंड में उसने प्रोग्रेस बिलिंग की है. ओके, नेक्स्ट at 31st March 20x2 the details for the construction are given. Contract cost to date excluding depreciation, this is estimated cost excluding depreciation वो है. और further progress payment कितनी हुई थी? 16.2 million. okay, Maryview account for profit on construction using input method measured. तो सबसे पहले हमने डिटरमिन करना है. पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का है. ए एंड आपके पास 31st मार्च है, ऐसे ही है. ओके, सो योर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स ऑन 1st जुलाई 20x0, ऐसे ही है. और ये आपके पास फर्स्ट ईयर एंड आ गया 31st मार्च 20x1. ये आपके पास सेकंड अकाउंटिंग ईयर आ गया 31st मार्च 20x2. और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है 31st दिसंबर 20x2. 31st दिसंबर 20x2, राइट. तो आपके पास जुलाई से लेके इस मार्च तक कितने मंथ्स हैं? 6 months प्लस 3 months, 9 months. ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट 12 मंथ्स हैं, ठीक है. और फिर है आपके पास अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स बनते हैं, ऐसे ही है. तो आपके पास टोटल कितने मंथ्स बन रहे हैं आपके? 9 + 12 + 9, काउंट करें. 21 + 9 30 मंथ्स बन रहे हैं, राइट. इसका मतलब जो आपने एसेट परचेज किया था ये था, इसकी पर मंथ डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 3 million डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास पर मंथ कितनी होगी? 1 लाख. ये आपके पास डेप्रिसिएशन है. तो हर महीने की डेप्रिसिएशन हमने इसको रिकॉर्ड करनी है. यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? अच्छा जी. जब हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी, विच इज 900. ठीक है.
जब हम सेकेंड मंथ की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की, तो आपके पास मजीद 1200 की डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी, ठीक है। और लास्ट उसमें जो कि अभी हमारी अकाउंटिंग ईयर में नहीं है उसकी बात करते हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है, इसमें हमने कॉस्ट टू डेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड कितनी करनी है, 9 मंथ डेप्रिसिएशन, जो कि कितनी होगी 900। और हमने एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट में कितनी डेप्रिसिएशन लेके जानी है, 2100 की, ठीक है। 21 महीने रहते हैं ना उसमें। अच्छा, सेकंड जब हम काम करेंगे 20x2 में, इसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेके जानी है, कितने महीने होते हैं इसके, 9 + 12 21, ठीक है। तो यहां पे हमने कॉस्ट टू कंप्लीट में 2100 की डेप्रिसिएशन इंक्लूड करनी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट में 900 की डेप्रिसिएशन इंक्लूड करनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, बाकी अभी हम सो वी नो दैट इट्स अ 30 मंथ प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन को निकाल लिया है। डेप्रिसिएशन हमें पता है कि टोटल 3 मिलियन का एसेट इस प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा, और जिसकी प्रोजेक्ट की लाइफ 30 मंथ्स है, तो इसका मतलब पर मंथ डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होगी, 1 लाख की होगी। तो हमने देखना है कि 31 मार्च, क्योंकि हमारे 2 ईयर एंड है, 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन कितनी कॉस्ट टू डेट में इंक्लूड होती है और कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट में, और नेक्स्ट ईयर कितनी कॉस्ट टू डेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है और कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट में। यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया है, फर्स्ट ईयर में कॉस्ट टू डेट में 9 मंथ की डेप्रिसिएशन होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट में 2100 की। नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट टू डेट में 2100 की डेप्रिसिएशन होगी और एस्टिमेटेड कॉस्ट में 900 की, ठीक है। सबसे पहले हमने आउटकम डिटरमिन करना है। सो आउटकम इज योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 40 मिलियन, और मैं इसको 1000 में राउंड ऑफ कर रहा हूँ, दूसरे साल भी 40,000 आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट टू डेट में 31 मार्च 20x1 में क्या आएगा और 20x2 में कितना आएगा, वो भी हम देख लेते हैं। 21 मार्च 20x1 में आर्किटेक्ट फी, मटेरियल एंड लेबर 500, 2800 एंड 3500, 500, 2800 एंड 3500, ठीक है। देन वी हैड 40% डायरेक्ट लेबर ओवरहेड बेस्ड ऑन 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सो ओवरहेड्स हमारे 40% ऑफ दिस वैल्यू होंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अभी कितनी आ रही थी, 9 मंथ्स हुए ना, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ रही है आपके पास 900, और एस्टिमेटेड कॉस्ट में कितनी डेप्रिसिएशन जा रही है 2100। सो दिस इज योर कॉस्ट टू डेट 9100, ये इसका सम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट टू कंप्लीट इज गिवन, आल्सो गिवन देयर, it cost to complete is in first accounting year 31st March 20x1, cost to complete is 14,800, right, excluding, तो depreciation मैंने separate लिख दिया, तो 14,800। so your contract price is 40 million, cost to date is 9.1 million, estimated cost to complete is 16.9 million, right। अच्छा जी, तो टोटल आपके पास कॉस्ट आएगी दिस प्लस दिस, तो आपके पास प्रोजेक्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट है, ओके। नेक्स्ट ईयर में आपके पास, नेक्स्ट मंथ में आपके पास देखते हैं नेक्स्ट ईयर का, उसमें भी आइदर प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो चेंज नहीं हुई ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दिस इज 31 मार्च 20x2 डाटा, जिसमें कॉस्ट टू डेट उन्होंने बताई है 20,400 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट वो भी बताइए 6600 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सो वी हैव, इधर हम लिख लेते हैं 20,400, और ये कितनी बताई थी उन्होंने 6600। अच्छा, अब हम इसमें डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। यहाँ पे आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी टू कंप्लीट डेप्रिसिएशन कितनी, और ये हो जाएगा आपके पास 2100, ठीक है। तो आपका इस साल भी प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ओके। तो अब हमने, नाउ वी नो दैट दिस इज प्रॉफिट मेकिंग एंड दिस इज प्रॉफिट मेकिंग, बोथ इज प्रॉफिट मेकिंग है। तो प्रॉफिट मेकिंग में हमने क्या करना था, रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट टू डेट, और उसके बाद बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो दे हैव गिवन यू द फॉर्मूला, मैरी व्यू अकाउंट प्रॉफिट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन यूजिंग इनपुट मेथड। इनपुट मेथड में कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ठीक है।
कॉस्ट टू डेट कंपेयर विद टोटल कॉस्ट, तो हमारे पास कॉस्ट टू डेट कंपेयर विद टोटल कॉस्ट पता चल जाता है, ये हमारी कॉस्ट टू डेट है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, दिस प्लस दिस। चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारे पास है दिस इज कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, सो दिस इज 35%। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी यूज करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75%। ठीक है, अब हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है बेस्ड ऑन दिस फिगर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज वुड बी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है आपके पास 40,000 इंटू 35%, ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, और कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट टू डेट जो कि आपकी डायरेक्ट में लिख देता हूँ 9100, राइट, ये आपका रेवेन्यू आ रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट विल बी 40,000 इंटू 30,000, राइट। अब एक गलती हो गई, क्योंकि दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर चीज चाहिए। इस 75 के अंदर लास्ट ईयर 35% भी प्रॉफिट आ रहा है, तो हमने क्या करना है, जो रेवेन्यू हमने लास्ट ईयर में रिकॉर्ड कर दिया है उसको हम लोगों ने माइनस कर देना है। तो लास्ट ईयर में हमने रिकॉर्ड किया था 14,000, वो हम माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब इस साल कितना रेवेन्यू होना चाहिए 16,000, और कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट आपके पास होगी 22,500, जिसमें से जो लास्ट ईयर की कॉस्ट आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसको माइनस कर दें, वो कितनी हो रही है 9100। तो ये आपके पास कितना आ रहा है 13,400। ये काम सिर्फ हमने फॉर द ईयर ना इनकम स्टेटमेंट के लिए करना है। फॉर बैलेंस शीट आइटम वी टेक कम्युलेटिव इफेक्ट, वो कम्युलेटिव इफेक्ट आता है, राइट। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ बैलेंस शीट, ओके। तो बैलेंस शीट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया 14,000 का, इस साल 14,000 का। अमाउंट कितनी रिसीव की थी हमने वो देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड इज 12.8 मिलियन, राइट। सो 14,000 माइनस 12.8, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 1200 का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ रहा है। नेक्स्ट केस में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ था 16 प्लस कम्युलेटिव इफेक्ट 14, दोनों सालों का लेना है ना, इस साल का प्लस प्रीवियस ईयर का कम्युलेटिव इफेक्ट 30,000, यही था जिसमें से हमने माइनस कर दिया था लास्ट ईयर का। ओके, और कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द पेमेंट्स, तो पेमेंट्स आपके पास हुई हुई है 16.2 मिलियन फॉर द ईयर वाज रिसीव्ड इन, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सो 16 माइनस 12, सॉरी हाँ दोनों ही माइनस है 29, so this will be contract asset on 31st March 2022 and this is your contract asset on 31st March 2024। आसान क्वेश्चन था, एग्जैक्टली। so let's see next question। so these are the MCQs, kindly attempt it at home, okay, ताकि हम इसको कल डिस्कस करें।